گندم پالیسی سے کسانوں کو 30 ارب کا رگڑا، محکمہ خوراک نے بڑے نقصان کا پردہ فاش کر دیا۔ پنجاب حکومت کے لیے گندم خریداری پر پالیسی کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ حکومت اب کسانوں کو نقصان پر سبسڈی دے کر ازالہ کرے گی۔ حکومت نے گندم کی قیمت 3900 روپے من مقرر کی تھی۔ پنجاب حکومت کے لیے رواں سال گندم کی خریداری پر اپنی پالیسی کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ حکومت کو اپنے ہی محکمے نے پالیسی سے کسانوں کو ہونے والے بڑے نقصان سے پردہ اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب حکومت کی گندم پالیسی سے کسانوں کو رواں سال 3 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اور محکمہ خوراک نے رواں سال پالیسی کے ثمرات پر حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گندم کی خریداری میں سست روی اور کم خریداری سے کسانوں کو بہت نقصان ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پالیسی کی منظوری سے قبل بھی حکومت پنجاب کو تمام معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اب کسانوں کو گندم کی قیمت میں نقصان پر سبسڈی دے کر ازالہ کرے گی، جس کے لیے محکمہ زراعت کے تحت کسانوں کو سبسڈی کا پلان دیا جائے گا، جس پر ورکنگ جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ SNGAT نے سابق چیئرمین PND جہاں زیب خان کو GR1 کا سرکاری گھر خالی کرنے کا فائنل نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ گھر سابق چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل کی بیوہ کو الاٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق چیئرمین PND کے GOR1 کے گھر کی توسیع کی تسمری مسترد کر دی۔ محکمہ SNGAT نے سابق چیئرمین PND جہاں زیب خان کو گھر خالی کروانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس بار پولیس کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ گھر سابق چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کی بیوہ کو الاٹ ہے۔ جہاں زیب خان ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی سرکاری گھر خالی نہیں کر رہے۔ سابق نگراں کابینہ نے بھی یہ سرکاری گھر خالی کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ برکت مارکیٹ ڈبل سٹوری انڈر پاس منصوبے کو جھنڈی، پنجاب حکومت نے نگراں حکومت کا منصوبہ رول بیک کر دیا۔ ٹاسک CBD سے لے کر LDA کو سونپ دیا۔ ڈبل سٹوری انڈر پاس ختم کر کے اثر نو پلان تجویز کرنے کی ہدایت جناح اسپتال سے گلباغ کی جانب انڈر پاس تجویز کیا گیا ہے۔ ڈبل سٹوری انڈر پاس ختم کر کے اثر نو پلان تجویز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ LDA نے جناح اسپتال سے گلباغ کی جانب انڈر پاس تجویز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جناح اسپتال سے گلباغ اور گلباغ سے جناح کی جانب بھاری ٹریفک کو سگنل فری کوریڈور ملے گا۔ نہر سے آنے والی ٹریفک کو گلباغ کی جانب موڑ کر کلمہ چوک سے قبل یو ٹرن کے ذریعے جناح کی جانب موڑا جائے گا۔ نہر سے گلباغ جانے والی ٹریفک کو بھی سلپ روڈ مہیا کی جائے گی۔ گلباغ سے نہر پر لے جانے والی ٹریفک کو انڈر پاس کے اوپر سے ڈائریکٹ ایکسیس دی جائے گی۔ LDA انجینئرنگ ونگ نے منصوبے پر کاسٹ اور ڈیزائن فائنل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ منصوبے کی لاگت اور ڈیزائن پر حتمی منظوری وزیر اعلیٰ دیں گی۔ حکومت بدل گئی مگر شہر کے حالات نہ بدلے۔ سڑکیں ایک بار پھر بدحالی کا شکار ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ ایک کے بعد ایک جواب دینے لگے ہیں۔ تجاوزات مافیا بھی پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ لاہور کے گلی کوچوں کی صورتحال پر بنی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صاف پانی کا بحران سنگین، نئے فلٹریشن پلانٹ لگنا تو دور کی بات، جو بچے تھے وہ بھی ایک کے بعد ایک خراب ہونے لگے۔ رمیزہ پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 6 ماہ سے بند پڑا ہے۔ علاقہ مکین بڑھتی گرمی سے دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہے۔ بات کریں تجاوزات مافیا کی تو وہ بھی بے لگام ہے۔ فیصل ٹاؤن مارکیٹ میں موجود سروس روڈ پر دکانوں اور پلازوں سے کئی فٹ باہر تک تجاوزات اور پارکنگ موجود ہیں۔ ریڑھیوں اور رونگ پارکنگ کی وجہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جن مندر چوک پر تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے۔ شہر کے مرکزی شاہراہ پر جگہ جگہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، جو جہاں چاہے اپنا ٹھیلا لگا کر کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں، محکمہ ایکسائز نے شہریوں پر بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کے رجسٹریشن کارڈ کی فیس میں 1.5 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ فیس اب 530 کی بجائے 1300 روپے وصول کی جائے گی۔ DG ایکسائز نے عمل درآمد کے لیے PITB کو سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ بالکل، DG ایکسائز نے عمل درآمد کے لیے PITB کو سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں پر بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کے رجسٹریشن کارڈ کی فیس میں 1.5 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ فیس اب 530 کے بجائے 1300 روپے وصول کی جائے گی۔ DG ایکسائز نے عمل درآمد کے لیے PITB کو سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کے لیے مراسلہ بھی بھجوا دیا ہے۔ تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے تمام امتحانی مراکز میں کیمرے لگانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تاحال 5% امتحانی سینٹرز میں بھی کیمرے نہ لگائے جا سکے، جس کے باعث امتحانات میں نقل کے خدشات تاحال برقرار ہیں۔ امتحانی سینٹرز میں نقل کی شکایات کو بورڈ کی جانب سے چھپایا جا رہا ہے۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے 567 میں سے 173 امتحانی سینٹرز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ سینٹرز میں لاہور کے 105 امتحانی سینٹرز شامل ہیں۔ قصور کے 25، ننکانہ صاحب 15،
और शेखुपुरा के 18 सेंटर्स भी हसास हैं। तालीमी बोर्ड के मुताबिक हसास इम्तिहानी सेंटर्स बारे महकमा हायर एजुकेशन को आगाही दे दी गई है। मज़कूरा हसास इम्तिहानी सेंटर्स में जल्द कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि इम्तिहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए उसातिज़ा की मुआवजों में 100% इजाफा किया जाए। निगरान अमले को मुआवजों की अदायगी भी 30 दिन में यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर कार्रवाइयाँ। लेस्को की रावी साइफन में कार्रवाई, बिजली चोरी पकड़ ली। एक्सियन शालामार मोहम्मद अली रजा की जेर निगरानी फार्म हाउस पर छापा मारा गया। लेस्को की सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को हुकाम ने मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। एक्सियन शालामार डिवीजन मोहम्मद अली रजा की जेर निगरानी लेस्को टीम ने फार्म हाउस पर छापा मारा और लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को हुकाम के मुताबिक फार्म हाउस पर लेस्को की सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। चोरी की बिजली फार्म हाउस पर मौजूद ट्यूबवेल को सप्लाई की जा रही थी। लेस्को हुकाम ने मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि डिटेक्शन बिल चार्ज करने के लिए भी महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की अनोखी मंतक ने आज ही ऑफिस को चकरा कर रख दिया। क्रिमिनल गैंग्स के हवाले से रिपोर्ट तलब की तो जवाब मिला कोई भी गैंग पंजाब भर में मौजूद नहीं। रिकॉर्ड चेक किया गया तो गुज़श्ता 3 माह में 1700 से ज़ायद गैंग्स पकड़कर 1.25 अरब की कारकर्दगी जाहिर की गई। आईजी ऑफिस की जानिब से सूबा भर से क्रिमिनल गैंग्स के हवाले से रिपोर्ट तलब की गई तो तमाम इजला की जानिब से जवाब मिला कि कोई भी गैंग मौजूद नहीं। आईजी ऑफिस की जानिब से रिकॉर्ड चेक किया गया तो गुज़श्ता 3 माह में 1780 गैंग्स की गिरफ्तारी रिकॉर्ड का हिस्सा निकले। 3 माह के दौरान 1.25 अरब के करीब रिकवरी जाहिर की गई। आईजी ऑफिस ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के हवाले से रिकॉर्ड का डाटा भिजवाने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब ने क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म दिया था। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। शादिमान नजरे आतिश करने का मुकदमा। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर के खिलाफ पुलिस पर हमला, अहलकारों पर तशद्दुद, राइफल छीनने और फायरिंग का मुकदमा। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम शब्बीर गुज्जर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हिलाकत केस में मुलविस मुल्जिम अफनान समेत दीगर के खिलाफ समात 7 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर दीगर शरीक मुल्जिमान को भी तलब कर लिया। अजमल उर्फ अकरम लाहौरी के खिलाफ 11 अफराद के कत्ल का 26 साल पुराना केस। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत को नाकाबिले समात करार देकर निपटा दिया। खराब वॉशिंग मशीन देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करने का मामला। शहरी ने सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तिदाई बहस के लिए 10 मई को तलब कर लिया। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने का मामला। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की जेर सदारत लाहौर हाईकोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास। तमाम जजेस की शिरकत। हाईकोर्ट के जजेस ने अतिया की आज़ादी को बेजा मदाखलत से बचाने के लिए तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की जेर सदारत हाई कोर्ट की न्यू जजेस लाइब्रेरी में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक गौर किया गया कि अदलिया की आज़ादी का किस हद तक बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इजलास में प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले तमाम जजेस ने शिरकत की, जबकि तीनों बेंचेस में मौजूद जजेस की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मिसाल या नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शिरकत की। जस्टिस सदाकत अली खान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी असरद जावेद घराल, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक समेत दीगर जजेस शरीक हुए। बिजली के बिल से निजात रोशनी के साथ पंजाब में 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की मंजूरी। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल करार। 1 kV सिस्टम, 2 सोलर प्लेटें, बैटरी, इन्वर्टर, तारें दी जाएंगी। बैटरी के जरिए 16 घंटे तक बैकअप हासिल होगा। आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर टेक्निकल उमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। इजलास में बताया गया कि इस स्कीम के लिए 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेटें, बैटरी,
इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। 1 kV सोलर सिस्टम से पंखे, लाइटें, छोटी मोटर चलाई जा सकेगी। इस मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरे कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात उज़मा जाहिद बुखारी, सेनेटर परवेज रशीद, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन P&D, सेक्रेटरीज एनर्जी खजाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPDCL, मैनेजिंग डायरेक्टर PPDB और दीगर हुकाम ने शिरकत की। स्पेशल अफराद को वज़ाइफ देने का प्लान तैयार कर लिया गया। स्पेशल अफराद को 14 अरब बतौर वज़ाइफ दिए जाएंगे। हुकूमत माजूर अफराद को 14 अरब रुपए की खतीर रकम वज़ाइफ के नाम पर देगी। हुकाम के मुताबिक वज़ाइफ उन अफराद को दिए जाएंगे जो जिस्मानी तौर पर काम करने के काबिल नहीं हैं। हुकूमत पंजाब वज़ाइफ 5 सालों में देगी। हुकाम के मुताबिक माहाना वज़ाइफ देने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद वज़ाइफ शुरू कर दिए जाएंगे। रकम उन स्पेशल अफराद को मिलेगी जो सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड होंगे। वज़ाइफ हुकूमत पंजाब के निगहबान कार्ड के तहत दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में आज फिर गर्मा गर्मी रही। ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली और पुलिस की मुदाखलत के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया। हुकूमती अरकान की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गूंज। राना आफ्ताब ने कहा कि इनके पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया। 3 रोज कबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए गए। हुकूमत को खैराती सीटों का ताना भी दे दिया। आज से 3 दिन पहले गवर्नर हाउस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुला के फॉर्म 45 उनको दस्तखत करवाए गए और जनाब स्पीकर वहां पे बकायदा प्लानिंग की गई कि 20,000 की लीड हो तो किस तरह मैनेज करना है, 15,000 की लीड हो तो किस तरह मैनेज करना है। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप और भी कर लें, 270 से आप 360 भी कर लें, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, बर्दाश्त करें अपोजिशन को, जो लोग वोट देते हैं उनको एक्सेप्ट करें। हम इसको रिजल्ट ये आ जाएंगे। अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले। हुकूमती अरकान भी कहां चुप बैठने वाले थे। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि पंजाब का इलेक्शन शफाफ था। अपोजिशन का वोटर ही घर से नहीं निकला तो इनका क्या कसूर। माजी में तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गुम हो जाते थे। लाहौर शहर में 5 बाई इलेक्शन हो रहे थे, मैंने खुद भी वोट डाला। ये देख लें, ये देखें, एक जगह पे मैंने भी वोट डाला। अब इनका वोटर ही नहीं निकला तो हमारा क्या कसूर है। बातें कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। हम लोग सारे इलेक्शन को खुद देख रहे थे, ये अपना वोटर ही नहीं निकाल सके। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेरे सदारत हुआ। अकलीती रुकन असम्बली डॉक्टर इजाज आलम मसीह ने रुकनीत का हल्फ उठाया। कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर पंजाब असम्बली का इजलास मंगल की सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास फनी तालीम के फ़रोग़ के जारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के खदोखाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर को प्रास कंट्रोल के हवाले से मुजवज़ा कानून साजी के बारे ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ATP के ताउन से जारी प्रोग्राम के तहत टेफ्टा के 16 कॉलेजेस और PVTC के 3 इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर समेत 8 शोबों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ्लैटिस होटल में छठी वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और MS कॉन्फ्रेंस हुई है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीकी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, VKE प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज भी शरीक हुए। वज़ीर सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने छठी वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी सेहत अली जान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी जाहिदा अजहर, डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़, उस्मान खालिद, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद भी मौजूद थी। गवर्नर पंजाब अली रहमान से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। वफ़द की क़यादत डायरेक्टर सिविल सर्विसेज अकेडमी डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने की।
वक्त से मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मुल्क के इंतजामी अमूर चलाने और तरक्की में अहम किरदार है। सिविल सर्विस का मतलब अवाम की खदमत है। यकीन है अफसरान ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि जदीद दौर में टेक्नोलॉजी को अपनाना और टीम वर्क करना बहुत अहम है। किप्स स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। किप्स स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की और तलबा तालिबात की हौसला अफजाई की। तकरीब में किप्स स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव आबिद वजीर खान, प्रिंसिपल समेत इंतजामिया, उसातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऐसी तकरीबात का मकसद जो है वो बच्चों के एतमाद में इजाफा करना होता है और हमारे स्कूलों में सिर्फ इनकी तालीमी सरगर्मियों पर ही तवज्जो नहीं दी जाती बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सालों की मेहनत है जो आज उन्हें समर की शक्ल में उन्हें मिल रहा है। उसातिज़ा का कहना था बच्चों की हिम्मत और हौसले को पुख्ता करने के लिए ऐसी तकरीबात खास किरदार अदा करती हैं। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसी तरह हर साल ऐसी अवार्ड सेरेमनी हुआ करें ताकि हमारी जो खुशियां हैं वो और भी परवान चढ़ सकें। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते और जब ऐसी तकरीबात होती हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और स्कूल वाले हमारे साथ मिलकर हमारी खुशियों में हमारे साथ मनाते हैं। शुरा ने स्कूल इंतजामिया की तलबा और तालिबात की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करने के लिए काविशों को खूब सराहा। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि उसातिज़ा, कैंपस इंतजामिया और दीगर स्टाफ में भी इनामात तकसीम हुए। कैमरामैन राना अयाज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42।